At Prime Video, we are deeply committed to championing rooted stories, and Panchayat stands as a shining example of that vision. Celebrated for its authenticity, simplicity, and honesty, and captures the charm and quirks of rural life in India. Since its debut about 5 years ago, the series has garnered critic and consumer acclaim throughout the world. And that's demonstrated through multiple awards. The IFFI, IFA, the Asian Academy Creative Awards, Indian Film Festival of Melbourne, and many, many more. They say that it takes a village to make a show. I think we can all agree that the name of that village is Phullera. Season after season, Panchayat has given us some of the most loved characters. Some of them are seated here right now. You'll see them in their post glory when I stop speaking, and that's going to be shortly. But we have to talk about the most iconic characters this show has given all of us, that we cherish every single day. With Panchayat Season 4 launching soon, we are also very, very delighted. And I will be presenting the first look of that show, which has not been seen before, for this very audience. So don't go anywhere. I know you may be a little impatient, but don't go anywhere. At the end of the session, we are going to be presenting that first look trailer. To kick off the session, I'm going to ask my first question to Chandan. And I think before I ask him that question, I have to tell you about this time. I think it's about a little over 6 years ago. 6 saal hue, about. When in 2019, 18 end, when Chandan, Deepak and the TVF team was over at the Amazon office and they presented the Bible of Panchayat. We narrated the first episode. And it was unusual. Here is a show जिसमें twist नहीं है, thrill नहीं है, murder नहीं है. But I think it was one of my most memorable and enjoyable narrations that I have sat through. So I had to share that. It was so unique and so different. Chandan, tell us, where does the idea of Panchayat come from? And in a world that's obsessed with plot twists, high drama, high concept, what made you believe that such a simple, heartwarming, slice of life story is going to become one of India's favorite shows? So, hi guys. Hi everyone. So back in 2017, I was writing sketches, comedy sketches for TVF, and I think it was time for me to graduate to the next level and go and venture into the long form. So मैं एक कहानी खोज रहा था, सोच रहा था कि क्या लिखना है, and so पहला thought ये था कि चूंकि that was my first long form, so even I was not very sure of my skill sets कि मैं पूरा pull off कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. So my thought was कि कहीं home ground से शुरू करते हैं. अगर skill set में कमी है तो कुछ और observations and उससे compensate करें. And from that I thought of that one log line कि शहर का लड़का गांव जाता है नौकरी करने. उसमें लगा कि शायद कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आ सकता है. Now गांव में कहाँ जाता है? रूरल सेटअप तो बहुत बड़ा है. Like most of the India is village. So exactly कहाँ जाके क्या करेगा? So of course there were options like BDO office, SDO office, कहीं तहसील में कहीं पे. But उसमें क्या था कि शायद मैं उसमें ऑफिसर बना के भेजता अगर SDO ऑफिस में भेजता. So during that research I stumbled upon this setup of पंचायत. और पंचायत में पंचायत सचिव का एक पोस्ट होता है. So दोनों में डिफरेंस ये था कि अगर कोई ऑफिसर बन के जाता, फॉर एग्जाम्पल जीतू, सो उसमें कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अचीवमेंट की फीलिंग होती है, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसर बनना इतना इजी नहीं है. कॉम्परेटिवली पंचायत सचिव में उतनी कोई फाइट नहीं है बनने में. सो आई डिसाइडेड टू मेक हिम पंचायत सचिव बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अचानक से
जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी साइकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि दैट्स द स्टोरी ऑफ लाइक 99% ऑफ द पॉपुलेशन। एवरीबडी, सबको यही लगता है कि मैं सही जगह पे नहीं हूं। सो दैट पर्टिकुलर इनसाइट एक्साइटेड मी वे टू मच कि हाई ड्रामा क्राइम इसमें नहीं है, वो शायद मैटर नहीं किया मेरे लिए उसके बाद। और उसके बाद जैसे जैसे लोगों को मैंने सुनाना शुरू किया तो शायद लोगों को भी मैटर नहीं करा था कि अच्छा ठीक है इसमें क्राइम नहीं है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं है ओवर द टॉप। फिर जब मैं सुनाने आया, यहाँ पे मनीष भी थे, तो सुनाते वक्त भी मैंने कॉन्फिडेंस में सुनाया, इन्होंने सुना और इन्हें भी सुनने में मजा आया। और जरूरी नहीं है कि सारी कहानियों में लाइक हाई ड्रामा एंड क्राइम होए। मोस्ट लाइक हमारी इतने सारे लोग बैठे हैं, किसके लाइफ में कितना क्राइम और हाई ड्रामा चल रहा है, बट स्टिल आवर लाइफ इज इंटरेस्टिंग, राइट? सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग दैट एंड आई थॉट हम लोग सारे लोग उसी पॉइंट पे कमिटेड रहे एंड धीरे धीरे एपिसोड दर एपिसोड कहानी बढ़ती गई और नाउ वी आर ऑन 4th सीजन। Deepak, my next question is for you. So, Panchayat is now undoubtedly one of India's most beloved shows. And one of the reasons is its very unique world building. Can you tell us a little bit about your approach on how to set such an authentic story, you know, where most people want to set a story but it want to appeal to other audiences and end up diluting the authenticity. But to be able to stay true to the story, build a world and remain authentic. Like, can you tell us a little bit about like what goes in the head as a creator, director, while putting something like this together and keeping it absolutely pure and yet something that becomes, I think, a phenomenon around the world? Okay, so I believe this all starts with the script. Definitely, script पहली चीज होती है जिसको ऑथेंटिक रखना होता है आपको। और हमेशा से हम लोग के दिमाग में ये था कि विल बिल्ड अ स्टोरी, विल बिल्ड अ स्क्रिप्ट जो कि ट्रू टू इट्स वर्ड, ट्रू टू द वर्ल्ड जो कि हमने अपने बचपन में देखा है, गाँव का वर्ल्ड उसके ट्रू रहे। बट टू टेक योर क्वेश्चन फॉरवर्ड, मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी चीजें ध्यान रखी थी वाइल वी वर क्रिएटिंग दैट वर्ल्ड ऑल्सो। In terms of settings, जैसे पंचायत is never shot on a set. पंचायत is always shot on real locations, real homes, real offices. Whatever you see in पंचायत, वो पंचायत का ट्रू पंचायत ऑफिस है। वो जो प्रधान जी का घर हम दिखाते हैं वो सच में उसी गांव के प्रधान का ही घर है। और हमें अचानक से टंकी मिल गई, हमने सोचा अब इसका क्या करें, उड़ा तो सकते नहीं है, तो हमने उस टंकी को कहानी में डाल दिया। We made the टंकी a character. तो सेटिंग्स को बहुत रियल रखा, कॉस्ट्यूम्स को रियल रखने के लिए हमने एक ट्रिक अपनाई थी जो मुझे एक्टर्स के सामने नहीं बतानी चाहिए। हमने कभी कभी गांव वालों के उनके पुराने कपड़े ले लिए थे और उन्हें नए कपड़े खरीद के दे दिए थे। द क्लोथ्स आर नेचुरली एज्ड, है ना। तो अब किसने पहने हैं वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। बट दिस इज हाउ वी अप्रोच द सेटिंग, the art, the production design. This is how we approached costumes. That everything, whenever in doubt, don't do the right thing, do the real thing. तो और ये फिल्मिंग हो चाहे म्यूजिक हो, फिल्मिंग में भी you will never see camera movements because you are so engrossed in the story that the work of DOP is never visible. And I believe that is the best kind of photography, cinematography, where cinematographer's work is not visible, the story is more visible. तो across all departments we took absolute care कि सब कुछ real रहे, सब कुछ disclosed रहे या ना रहे वो जरूरी नहीं था। Interesting. I think at some point of time you should tell them about when you were doing season 2, how the village had changed and how that added to the character of the story itself. But we'll come to that in a moment. Chandan, coming back to you. Panchayat blends simplicity, drama, satire, comedy, emotions. मतलब ऐसे, you know, it's like comfort food when somebody watches it. ऐसे लगता है कि एक थाली होती है ना जिसमें सब मिल जाता है। और the interesting thing about the Indian थाली, इसकी उसकी जो proportions होते हैं वो absolutely right होते हैं। मीठा, अचार,
you know, Panchayat really feels like home. It feels so comfortable. Like, how do you actually, while you write that, you know, make sure that you don't lean too much on one side and yet carry your creative vision forward? आई थिंक लिखते वक्त ये ध्यान रखा था कि फर्स्ट थिंग कि डोंट ओवरराइट इट बिकॉज अ सेटअप ऑफ विलेज इज सच अ पोटेंट लाइक सेटअप कि इफ यू वांट यू कैन आप 10 डायरेक्शन में भटक सकते हो और अल्टीमेटली आपके पास से खिचड़ी होगी. सो फर्स्ट थिंग वाज कि डोंट ओवरराइट इट. सेकंड थिंग कि बेसिक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग फंडामेंटल उतना ही लिखो जितना समझ में आए और जितना अगर आप कुछ भी कहानी लिख रहे हो तो अगर आपको सुनाने में मजा आ रहा है और सुनाने में मजा आ रहा है और सामने वाले को सुनने में मजा आ रहा है. सो आई थिंक दैट्स अ गुड मेट्रिक टू हैव. और वो तब होता है जब सुनाने वाला और सुनने वाले दोनों कैरेक्टर्स कन्फ्लिक्ट और इमोशन बहुत क्लियरली फॉलो करते हैं. अगर देखते टाइम अगर बहुत सारी चीजें अगर चल रही हैं तो कई दफा लोग देखने वाले लॉस्ट हो जाते हैं. So I think that is not a very like good thing to have in a story. अगर आप जितनी कहानी कहनी है, don't overburden it, don't overwrite it, keep it simple. And by simple ये नहीं कि like एकदम basic. Story layered हो सकती है, बहुत सारे layers हो सकते हैं. Even पंचायत में we have explored a lot of things. By simplicity I mean like even if it global examples like for example Godfather. Godfather is such a layered story, but when you see the first part, for example, it's so straightforward, so it's not convoluted at all. It's all performances, characters, and well written and simplified version. It's not too much to like consume. So समझ में ज़्यादा easy आता है, connect ज़्यादा होता है. So I think this we try to approach the whole thing by this method, and we are glad that public को भी like समझ में आई वो चीज़. So the secret mantra is keep it as simple as Godfather. And I'm just like, I'm just like paraphrasing what he's saying. I didn't say that. But without diluting the layers of the story. Like by simplifying का ये मतलब नहीं होता कि एकदम भी like कुछ करो ही मत उसमें. You can add all the layers while keeping it simple. Of course ये इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ. But yeah, I think that's the way forward. And you know, before I come, you know, to these acclaimed actors who've really brought some of the best characters to life, I have to talk about somebody who's conceptualized and written them along with Chandan. And again, I'm going to go back, and it's a lot of reminiscing why this show was even made. I remember the first episode when you narrated the episode to us. There was a fairly long scene about Prahlad Cha and Vikas, who are sitting outside the office waiting for Abhishek to come. Abhishek, right? Abhishek to come. And they are discussing at length about how many pieces of petha in a plate, right? And I remember like that became a moment, you know, most narrations will have a moment of discussion, right? Like as we share feedback, and it was a moment of discussion where we were debating, is that scene indulgent? What is it trying to say? What character is it trying to build? But it was really amazing, right? And from those two characters came, you know, many other characters. You know, there's Pradhanji, there was Abhishek's character, and, you know, many others. Banrakas, Binod, like, I mean, Shanti, Kranti Devi, I mean, it is like, it's never ending. I mean, I think this is one show that has given us some of the most iconic characters of today's digital television, and would just love to know how you're thinking about it. कैरेक्टर्स यार चंदन ने डिजाइन किए, हमने भी बैठ के उस पर डिजाइन किया, लेकिन मेजरली मतलब मेरे लिए जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है कैरेक्टर्स का, क्योंकि मैंने इस तरह के लोग गांव में देखे हैं अपनी आंख से. मैंने एक अपने गांव में मतलब अक्सर हर वीक में 2 दिन 3 दिन एक प्रधान जी हुआ करते थे, उनके घर से दही आ जाती थी रैंडमली. क्यों? क्योंकि आज भैंस ने दूध अच्छा दिया है तो दही आ जाती थी. कभी वो सब्जियां भिजवा देते थे,
कभी वो फल भिजवा देते थे। फिर मुझे आज रियलाइज होता है दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टू कीप एवरीबडी रिमेंबर योर नेम। और वो प्रधान जी ही हो गए, वो हमेशा पहले भी प्रधान जी थे, वो उस समय प्रधान जी थे और हमारे लिए वो लाइफ टाइम प्रधान जी थे। और वो ऐसे कैरेक्टर्स गांव में होते हैं, दे यूज दीज इंटेलिजेंट ट्रिक्स एंड टैक्ट्स। उनके पास कैंपेनिंग तो होता नहीं है, बहुत बड़ी फंडिंग होती नहीं है, दिस इज हाउ दे कैंपेन। और विकास जैसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी लाइफ की बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है कि पेठे 2 देने चाहिए, 3 देने चाहिए कि 4 देने चाहिए, कितना सर्व करना चाहिए। दीज आर वेरी सिंपलिस्टिक, वेरी रियल कैरेक्टर्स जो कि गांव में अभी भी रहते हैं। एक मास्टर जी थे, वो दिन भर पेड़ के नीचे खटिया बिछा के सोए रहते थे। भला पता नहीं उस स्कूल का क्या चल रहा होगा, भगवान जाने। बट वो पूरे टाइम पेड़ के नीचे खटिया बिछा के सोए रहते थे। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो है वो ट्रूली एग्जिस्ट करते हैं गांव में। हमने बस इतना ध्यान रखा कि हम लिबर्टी लेके जबरदस्ती उन कैरेक्टर्स को हीरोइक ना बनाए या डेमोनिक ना बनाए। हमने बस जितना ट्रू टू द वर्ल्ड वो थे उतना ट्रू रखा। एंड आई थिंक दैट्स द कोर ब्यूटी। चाहे वो एक बनराकस हो जिसको प्रधान जी के नहाने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे क्रांति देवी हो जिनको मंजू देवी के मेकअप से भी प्रॉब्लम हो सकती है, कपड़ों से भी प्रॉब्लम हो सकती है। हर कैरेक्टर को ट्रू रखने की कोशिश की और फिर वो बनते 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 कहीं ना कहीं वो एक ऐसे कैरेक्टर्स बन गए जो प्रॉब्ली आप सब लोग गांव में पिकनिक मनाने भी गए होंगे तो देखा होगा वैसा आदमी आप लोगों ने। आई थिंक द स्टिकिंग टू द ट्रू नेचर ऑफ कैरेक्टर्स, already existing characters in the world was the key factor why characters have been working for this show. On behalf of the audience, I'm going to ask you a very controversial question. Who's your favorite character? All of them. Come on. नहीं अच्छा, at least tell us, are they on the stage or are they not on the stage? मुझे सारे कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने हर कैरेक्टर्स पे अपनी तरफ से इक्वली एफर्ट डाला है। चाहे वो एक लाइन का भी कैरेक्टर हो, एक एपिसोड का कैरेक्टर हो, नया सचिव उठ के एक एपिसोड करने आता है, उस पर भी वर्क किया था। तो फॉर मी ऑल कैरेक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट और सबने बहुत, आई वॉज वेरी थैंकफुल, आई एम स्टिल वेरी थैंकफुल बिकॉज कि उन कैरेक्टर्स को जो सोचा था, जो लिखा था, वो इन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो हम लोग के लिए अलाइव हो गए। Now let's, give attention to some of the most remarkable individuals here who have brought these characters to life. They have become, part of every home, every conversation, every age group. And my first question is, Jeetu, it's to you. Jeetu, you play this quintessential fish out of the water character there. You're an outsider in a village. You don't really like it, but everyone else loves you. You are now getting emotionally invested. That character has progressed over many seasons. How do you strike that delicate balance? As an actor, from, of course, there's a script and there's a director, but how do you, with your touch, find that balance between urban ambition and rural realities? Hello everyone, thank you for being here. First of all, मैं तो मतलब थोड़ा पहले से कहानी बताना चाहूँगा और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मिश्रा जी एंड चंदन जिन्होंने शो बनाया और मैं भी उस टाइम पे उस ऑफिस का पार्ट था और तीनों की स्टोरी बहुत अलग है कि कैसे वो पंचायत पे लैंड किए। तो वैसे ही मेरी स्टोरी भी बहुत अलग है। लाइक हम लोग वहाँ पे टीवीएफ में जब थे तो एक मंडे मीटिंग हुआ करती थी। वहाँ पे बहुत सारे आइडियाज हम लोग डिस्कस करते थे। देन एक दिन अरुणाब ने वहाँ पे बोला कि यार क्यों ना एक ऐसी स्टोरी बनाई जाए कि बस एक जो कि बहुत ही सिंपल सा सेटअप होगा, एक पेड़ होगा और उसके नीचे 2 गाँव वाले बैठ के जो भी बाहर चल रहा है, लाइक यूएस में चल रहा है या जो इंडिया में जो शहरों में चल रहा है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, जो वो न्यूज पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं या फिर रील्स देख के वो कैसी बातें करते हैं। तो इस पे एक इंटरेस्टिंग स्केच की सीरीज हो सकती है। तो वो बहुत अच्छा आइडिया लगा। एंड देन समीर एंड बिस्टोज लाइक कि यार एक मालगुडी डेज टाइप कुछ होना चाहिए जो हमने कभी बनाया नहीं है। एंड मीनवाइल मिश्रा जी एंड मी वाज ट्राइंग टू मेक अ क्राइम थ्रिलर शो, ठीक है।
तो हम उसमें लगे हुए थे कि अभी तक ऑनलाइन कुछ भी सब बहुत कॉमेडी आ रहा है, रोमांटिक आ रहा है, बट ये वाला जॉनर अभी एक्सप्लोर नहीं किया है किसी ने. इट वॉज वे बिफोर मिर्जापुर. सो वी वर मेकिंग समथिंग क्राइम थ्रिलर, वी वर बिजी इन दैट, बट वो कभी नहीं, वो शो बना नहीं. एंड उस टाइम पे चंदन का एक आइडिया है कि हाँ मतलब जो गांव वाला जो सेटअप है, लाइक मालगुडी डेज, और जो गांव वालों का क्या पर्सपेक्टिव होता है बहुत सारी चीजों के बारे में, तो उस पे एक शो बनाया जा सकता है जो कि सबको अच्छा लगा. सो इनिशियली आई वाज नॉट पार्ट ऑफ इट कि मैं इसमें परफॉर्म करने वाला हूँ या मैं एज एन एक्टर जाने वाला हूँ इस शो में. सो वैसे चीजें शुरू हुई और सबको आइडिया अच्छा लगने लगा. एंड सब लोग क्योंकि टीवीएफ में कहीं ना कहीं सब लोगों ने एक गांव की लाइफ देखी है और वो लोग गांव में रहे, तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव आता था, जो कि कुछ 20 साल पुराने आइडियाज होते थे कि गांव कैसा दिखता था उनके टाइम पे. बट उससे पहले आई थिंक बिश्रा जी और चंदन गांव में रिसर्च करके आ चुके थे, और जो भी हम आइडियाज बता रहे थे वो इन लोगों से रिजेक्ट हो रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत पुरानी चीजें हैं, गांव ऐसे नहीं है, गांव बहुत डेवलप कर गए हैं, वहाँ पे लोग फोन्स पे हैं, वहाँ पे लोग रील्स देख रहे हैं, एंड जिस तरीके से तुम लोग पंचायत बता रहे हो वैसा पंचायत है नहीं. सो इनिशियली आइडिया वॉज कि एक पंचायत ऑफिस की कहानी कहनी है जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होंगे, और वो एक इट विल बी लाइक अ ऑफिस, जो ऑफिस यूएस वाला शो है उसकी तरह एक शो होगा, जो कि इंटीरियर 4 कैरेक्टर्स होंगे उनके बारे में होगा. बट देन इन्होंने और रेकी की और रिसर्च की और रियलाइज किया कि नहीं, मतलब ये सिर्फ ऑफिस में नहीं हो सकता, ये शो को बाहर जाना बहुत जरूरी होगा. तो वहां से शो की शुरुआत हुई. एज चंदन ने बताया कि बीडीओ उनको नहीं चाहिए था, पंचायत सचिव चाहिए था. तब वहां से लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कि हाँ, आई कैन बी पार्ट ऑफ द शो एंड आई कैन कम एज पंचायत सचिव एज अभिषेक. सो दिस इज माई स्टोरी. एंड या उससे पहले हम लोग काफी स्केची चीजें करते थे. जो स्केचेस होते थे, जो उनमें जो कैरेक्टर्स होते थे, उनमें हमेशा एज एन एक्टर परफॉर्म करने के लिए बहुत कुछ होता था. हमेशा कुछ ना कुछ रेफरेंस होता था, रेफरेंस पॉइंट होता था, या तो वो कैरेक्टर का हम स्पूफ कर रहे होते थे, तो हमेशा एक हेल्प मिलती है एज एन एक्टर. बट जब पंचायत पहली बार सुना तो लाइक एक एक पेज के, आधे पेज के सीन थे जिसमें पढ़ के लगता था कि एज एन एक्टर तुम कितना करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे. बहुत लाउड जोक्स हुआ करते थे अब तक, जो कि एज परफॉर्मर तुम्हें मजा आता था करने में, और एक हेल्प होती थी उन जोक्स के थ्रू. यहाँ पे उस तरह के लाउड जोक्स नहीं थे. तो आई थिंक जब शूट शुरू हुआ तो 6-7 दिन तक इजी नहीं था. 6-7 दिन तक मैं काफी परेशान रहा कि ये इस तरह की चीजें सही से लैंड कर रही है नहीं कर रही है, और ये जिस तरह का लाउड फनी अब तक हम करते थे ये उतना फनी लगेगा या नहीं लगेगा. तो 6-7 दिन तक मैं काफी परेशान रहा. जैसे आई थिंक 3rd डे वी वर शूटिंग वन जोक जिसमें प्रधान जी चाबी खो जाती है और हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा जोक है कि अरे सचिव जी यहाँ से जल्दी चलिए, यहाँ से कल ही एक गेहूंमन सांप निकला है. ठीक है, तो वो बहुत अच्छा जोक था, बट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि ये पढ़ रहा है ठीक से, नहीं पढ़ रहा है, और उसको हम लोग बहुत बार रीटेक्स लिए हमने उस चीज के. आई रिमेम्बर लाइक जब वो शूट कर रहे थे हम लोग खेत में और बहुत गर्मी थी धूप में, और जीतू वहीं पे स्टक हो गया था, यार जब नहीं रहा है. हमने बोला कि भाई 220 पन्ने की स्क्रिप्ट है, ये जस्ट एक जोक है, आगे बढ़ते हैं. आई थिंक वो 7-8 दिन मेरे लिए डिफिकल्ट थे, जो बैलेंस मैं ढूंढना चाह रहा था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया था. इस तरह के कैरेक्टर जो सिंपलिस्टिक हो, है ना, जिनमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इमोशन आए, रादर कोई रेफरेंस से मैं कुछ मैनरिज्म यूज करके डालूं, तो वो चीजें नहीं हो रही थी इस शो में. एंड 7-8 दिन बाद रशेस लोगों ने देखे टीवीएफ ऑफिस में, और उन्होंने मुझे विश्वास जताया कि हाँ ये सही जा रहा है एंड इट्स गुड. तो बस जैसे मिश्रा जी बोल रहे हैं, चंदन बोल रहे हैं, वैसे परफॉर्म करता रहे एंड इट विल बी ऑल राइट. सो वहां से फिर थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे मजा आने लगा. एंड बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड को एक्टर्स मेरे साथ थे. रघु सर, नीना मैम, सुनीता मैम, फैजल सर, चंदन. तो बहुत ही बहुत हेल्प मिलती है वो केमिस्ट्री. मुझे लगता है कि बहुत करेक्ट कास्टिंग है और करेक्ट लोग आए हैं उन कैरेक्टर्स को करने के लिए, तो आपस में बहुत एक अच्छा माहौल बनता है. सर को बहुत आइडिया है गांव कैसे होते हैं, फैजल सर को बहुत आइडिया है कि हाँ गांव एक्चुअली कैसे होते हैं. तो वहाँ से बहुत सारे रेफरेंसेस थ्रू स्टोरीज, थ्रू देयर टॉक्स, थ्रू देयर लैंग्वेज, लिंगोज, वो चीज़ें करते हुए तो मैं वो फीलिंग आती है. दैट्स मतलब वो केमिस्ट्री क्रिएट करती है. दैट्स ऑल द केमिस्ट्री. तो आई थिंक बहुत हेल्प मिली मुझे इतने ग्रेट को एक्टर्स के साथ. आई एम वेरी लकी कि मुझे रघु सर, जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ, उनके साथ काम करने का मौका मिला. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि ऑडियंस को वो सारी चीज़ें और वो सारे मोमेंट्स बड़े पसंद आए. रियली ग्रेटफुल. थैंक यू.
My next question is for Sunitha. Shall we for a moment talk about the women of Panchayat? May I have a cheer for the women of Panchayat? Hello. Yeah. Thank you so much. Yeah. My question is that, you know, your character, Kranti Devi, is a sharp, fearless, and always ready to challenge Manju Devi, right? Like, I mean, it's just, you know, it's amazing to see. Who's also another strong character. You're also the perfect partner in crime to Banrakas. I think he almost draws strength from you. And you know, with a strong woman behind him, he's about to go and get what he wants. What was it like bringing such a dynamic and strong-willed character to life? And how do you see the role of women evolving in the world of Panchayat? Thank you, Manish. It's a very tough and very interesting question. As an actor, when I watched the first season of Panchayat, I really, manifested कि काश मुझे इसमें काम करने को मौका मिल जाए. एक्चुअली मैंने ऑडिशन तो दिया था, शॉर्ट लिस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मेरे वो एक दिल में ना टीस रह गई थी, क्योंकि इतना मेरे दिल के, मेरी जिंदगी के करीब था, क्योंकि मैं हूँ एक छोटे से उत्तराखंड के गांव से ही हूँ. तो जब मुझे दीपक सर ने बुलाया और चंदन सर ने मेरे संग एक रीडिंग का सेशन किया, तो मैं बहुत ही खुश हुई थी. और जो आप कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, शायद हल्का सा चंदन सर और दीपक सर को लगा होगा मैं ये कैरेक्टर कर पाऊंगी, कि जिस वजह से मुझको इन लोगों ने ये चांस दिया, बिकॉज द राइटिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड दीपक सर एज अ डायरेक्टर, मतलब उन्होंने बोला रियल रहो, लाउड भी हो तो भी रियल रहो, गांव वाले बने हो तो भी रियल रहो. तो वो चीज ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई गांव का किरदार है तो वो कुछ अतरंगी करेगा, ऐसा नहीं होता है. और जैसा जीतू ने बोला, ये बड़े नसीब की बात है कि हम सारे जो एक्टर्स हैं और जो अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं, हम लोग भले ही विपक्ष पार्टी के हों, पर सबके अंदर एक बड़ा अच्छा तालमेल बैठा हुआ है. वो तालमेल की वजह से वो जो डायरेक्टर चाहते हैं या जो चंदन सर ने लिखा हुआ है, उसको हम आगे ले जा पाते हैं. उसमें हमारा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है. तो इस वजह से जो कैरेक्टर का और जो स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट है, दैट बिकम्स वेरी प्योर. तो वो वाली चीज है. और यस, मैं बहुत खुश हूं कि मेरे को इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना डायनेमिक कैरेक्टर मिला है, बिकॉज बहुत कम ऐसा होता है कि हमें इस तरह के कैरेक्टर मिलते हैं. एज एन एक्टर वी ऑलवेज ट्राई, ऑलवेज यू मैनिफेस्ट कि एक ऐसा अच्छा कुछ कैरेक्टर मिल जाए. तो मेरी तो जिंदगी बदल दी है एक्चुअली क्रांति देवी ने, और मेरे जीवन में तो क्रांति आ ही गई है. लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं शायद हमारे जैसे किरदार और इस तरह की सीरीज जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं एक एक स्पार्क छोड़ जाती हैं उनके अंदर भी, कि बोलो, रिएक्ट करो, कुछ करो, घर में ही मत बैठे रहो. आप देखिएगा सीजन 1 में मंजू देवी, जो एक्चुअली गांव की प्रथा है कि प्रधान तो औरत ही होती है, वो ना चाहते हुए भी उन्होंने मतलब वो मेरी विपक्षी पार्टी की हैं, पर मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि मंजू देवी स्टेप आउट कि नहीं, मुझे इन्वॉल्व होना है, आप ही क्यों सारी चीज करोगे. तो जो आज मेरे ख्याल से घर घर औरतें, चाहे वो बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो या गांव हो, आज औरतें दे आर स्पीकिंग आउट एंड दे आर स्टेपिंग आउट ऑफ देयर बाउंड्रीज, एंड दे आर टेकिंग चैलेंजेस, which is commendable. And I think 5% ही सही, somewhere such series, such characters, such writing, it does help. Thank you. My next question is for Raghuveer ji. First of all, it's an absolute honor, for us to have him here for his really honored, sir. आपसे 2 क्वेश्चन है.
साथ में बोल दूंगा मैं। क्या बात है, कौन है? तो जो एक चीज जो हमने देखी है और हम सुनते हैं, हमें सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं, बहुत फीडबैक मिलता है, वो है कि लोगों ने आपके कैरेक्टर से, आपकी एक्टिंग से इतना प्यार किया है। और दो चीज है कि दैट लव दैट यू हैव सीन इज नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम वन जनरेशन, it is coming from the youngest audiences across the world, and it's also because ऐसे लगता है कि आप जब एक्ट कर रहे हो तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हो, कि ये जो कॉमराडरी है, ऐसे लगता है कि आई थिंक यू आर इम्प्रोवाइजिंग अ लॉट ऑन योर ओन, एंड आई नो it's a very difficult thing for a writer and a director to hear, but can you tell us a little bit about when you're on the set, आप स्क्रिप्ट पे कितना ध्यान देते हैं और आप इम्प्रोवाइज कितना करते हैं? क्योंकि जब सीन देखते हैं हम तो इतना रियल लगता है कि लगता नहीं है कि ये कोई स्क्रिप्ट बैठ के पढ़ रहा है, जैसे दोस्त मिलके हंसते हैं, रोते हैं, और जो रिलेशनशिप है उनकी, इट कांट बी ऑफ अ स्क्रिप्ट. सो हाउ डू यू मेक दैट वर्क लाइक मैजिक? मैजिक तो कुछ नहीं है, बस यूं ही कर देता हूं मैं बस. जब कोई चीज यूं ही कर दो तो मैजिक हो जाता है. अगर बहुत जोर लगा के, बहुत शिद्दत तो खैर अलग बात है, लेकिन बहुत की इसमें ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये और यहाँ से उठा के बस उसी में दिमाग उलझ जाता है, फिर जो सरलता और सहजता वो गायब हो जाती है. तो स्क्रिप्ट तो बहुत पढ़ता हूं मैं. सबसे पहले तो सबसे जो मेरी जिम्मेदारी है वो तहे दिल से मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं, और इतना पढ़ता हूं कि इम्प्रोवाइज होने लग जाए. तो मेरा ताल्लुक एक्चुअली पारसी थिएटर से रहा है. जब उस वक्त जो मैंने 6 साल तक बिल्कुल खाना बदोशों की तरह नाटक किए हैं पारसी थिएटर नाटक कंपनी में, और वहाँ पर हर गांव में जा के हम एक महीने में जाके और नाटक करते थे, फिर दूसरे गांव चले जाते थे. तो उस वक्त मैंने ये यूपी, बिहार, राजस्थान और ये सब चप्पे में जाके हमने नाटक किया, और वहाँ के लोगों से वाकफियत है मेरी, वो लोगों से मिलना जुलना, और बस यही था. क्योंकि सीखना चाहता था म्यूजिक और एक्टिंग जो गले पड़ी मेरे, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके आगे और कोई भी पेशा नहीं हो सकता है इतना खूबसूरत, क्योंकि इसमें सब कुछ सीखना बड़ा लाजमी है. हर एक चप्पे पे एक इसमें कुछ छूटता नहीं है, कुछ भी नहीं छूटता. तो बस वही था कि वही आदत पड़ी हुई थी मेरी कि आप स्क्रिप्ट पढ़िए और इतना पढ़ लीजिए कि आपकी बिल्कुल उतर जाए, आपकी रूह में उतर जाए. उसके बाद फिर इम्प्रोवाइज अपने आप हो जाता है. फिर तो आप उस फजा में बिल्कुल ऐसे डूब जाते हैं कि फिर जबरदस्ती इम्प्रोवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती. फिर जबरदस्ती जो अपने आप ही जो होता है तो हो जाता है. और जहां तक इस कैरेक्टर की बात है, तो अभी एक तो मुझे ये पता लगा कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं इस कैरेक्टर में आया कैसे. तो अभी दीपक ने बताया कि हमने वहां के कपड़े मांग लिए थे गांव वालों से, तो आज मुझे पता लगा कि मैं इतने जल्दी उस कैरेक्टर में कैसे आ गया. तो आपने मुझे वहां के कपड़े पहनाए थे क्या? एक तो ये, और एक मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे अपने गांव का सरपंच याद आ गया है. तो हुआ ये था कि हम छोटे हुआ करते थे, और जब कहीं शादी ब्याह हुआ करता था तो हम जाके वहां गांव में खेला करते. तो अखाड़ा हर गांव में अखाड़ा होते ही है, हर मोहल्ले में. तो अखाड़े के सामने वो पंच, सरपंच और मेरे पिताजी वहीं बैठे हुए थे. हम तो बैलगाड़ी चलाने वाले लोग, पिताजी भी बैलगाड़ी चलाने वाले लोग, और बस वो जो सरपंच जो कह दे बस उसी को मान लेते थे. तो हम लोग वहाँ खेल रहे थे, किसी की शादी थी तो हम लोग खेल रहे थे वहाँ पर, बच्चे इतने सारे खेल रहे थे. तो वो सरपंच जी बस हर बात तो वो अपने आप को लगाते थे कि हम ये हम वो. तो हम लोगों को खेलते देखा तो बोले देखो खेल रहे हैं ये. मुझे बुलाया रघुवीर इधर आ. बोले क्यों रे खेलते रहते तुम लोग? तो हमने कहा तो और क्या करें? तो बोले ये पढ़ते लिखते नहीं है, खेलते रहते हैं सब. और हमारे जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे हम लोग फर्स्ट आया करते थे. तो मैंने उनसे कहा सब लोग फर्स्ट आते थे, सेकंड कौन आता था? अरे भाई साहब, जो मैंने उनसे कहा कि सेकंड कौन आता, मेरे पिताजी ने जो खींच के मारा, बोले बुजुर्गों के मुंह लगता है.
अब बताइए मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? कहते बुजुर्गों के मुंह लगते, इतना मारा मुझे कि उसके बाद मैंने बुजुर्गों के मुंह लगना छोड़ दिया और मैंने मन ही मन कसम खाई कि मैं सरपंच जी आपको छोड़ूंगा नहीं, और छोड़ा तो अब यहाँ आके पकड़ा उनको ले जाके इस जगह। तो ये है बस प्रभु, but such a lovely, story. I think, stories behind stories are really why some of us are here. So thank you for sharing, such gems. It's truly amazing to hear. I have a question for anybody who wants to answer this. Panchayat has truly become a category-defining show, and it has paved the way for many such stories to be told. And back in 2020, there was nothing really much like it in the space, in this milieu, and it's paved for a lot of other shows to be made in this zone. There is Gram Chikitsalaya, which is coming up soon. There's Dupaiya that has done phenomenally well for us. Have you unintentionally ending up creating the RCU, the Rural Cinematic Universe of India? Any of you can answer that question. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज नॉट इंटेंशनल, लेकिन अगर बन गया तो मैं माइंड नहीं करूंगा. तो वाई कैन नॉट, देयर कैन बी अ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, देयर कैन बी अ विलेज सिनेमैटिक यूनिवर्स. और क्रॉसओवर्स होंगे कि नहीं वो बाद में देखते हैं, बट डेफिनेटली अच्छा लगेगा अगर इस तरह का एक यूनिवर्स बने, इस तरह की कहानियां बने जो आपस में इंटरडिपेंडेंट भी हो और येट इंडिपेंडेंट भी हो, तो अच्छा लगेगा. That again, just we're running a little short of time. Last question for everyone here is, not many Indian streaming shows make it, to the 4th season. So congratulations to all of you. It's a very, very, very big feat. There have been teams that have worked tirelessly, from the creators to the actors to the marketeers to the content teams at Amazon, and it's taken a village to make this happen, and the way it's been happening. Another personal agenda of ours has been to bring this show back year on year. We brought the 3rd season last year, mid-year. We're bringing the 4th season back this year, and we're hopefully going to do that again. I'm not announcing anything, but we're hopefully going to continue the tradition. How do you think about delivering a show year on year with this level of creativity and love that you get, and you continue to drive with every season? How do you do this? आई थिंक जब आपने शो स्टार्ट किया था तो सबसे पहली बात की वी वर नॉट इन अ हरी टू फिनिश ऑल आवर लाइक एमओ इन अ सिंगल सीजन. इट वाजंट लाइक वी वर कन्वर्टिंग अ फिल्म टू अ शो. हमने शो ही सोचा था, एंड द गेम वाज कि मल्टी सीजन बनाना है अगर फर्स्ट सीजन के आगे हम गए तो. फॉर दैट लाइक इसलिए हमने पहले सीजन को बहुत ही इंटेंशनली सेटअप की तरह यूज किया है. ऑल्दो उस समय वो खुद में भी पूरा लगता है, डिस्पाइट दैट व्हेन यू सी इट इन लाइक पर्सपेक्टिव ऑफ रेस्ट ऑफ द सीजंस. सो दैट वाज द सेटअप कि प्रोटैगनिस्ट पहली बार आता है, एंड द फर्स्ट सीजन वाज जस्ट अबाउट लाइक ही गेटिंग लाइक कि थोड़ा सा लास्ट में उसके चेहरे पे स्माइल आती है फॉर व्हाट एवर रीजंस टंकी पे, और ओवरऑल इन जनरल बाकी कैरेक्टर्स के साथ कैमराडरी अच्छी बनती है, वर्ल्ड अच्छे से स्टैब्लिश होता है, कैरेक्टर्स लोगों के दिल दिमाग में उतरते हैं. सो दैट वाज आवर ओनली लाइक सिंगल मोस्ट मोटिवेशन फॉर सीजन 1. एंड बिकॉज ऑफ दैट, चूंकि हमने सारी चीजें खत्म नहीं कर दी पहले सीजन में, हमने उसे सेटअप की तरह यूज किया और लाइक फर्स्ट एक्ट ऑफ अ मूवी. सो हमारे पास उसके बाद भी मल्टी सीजन बनाने के स्कोप हैं. उसमें कैरेक्टर कहानियों के ट्रैक्स खुलते जाते हैं लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर. So I think that's how we tackled it. I know we're on time, but just really, I think one of the most interesting characters in the show actually we haven't spoken about much today, and I really do want to spend a little bit, on that. It's a character has become, a pop cultural phenomenon. It's gone viral. It's, memes everywhere. और वो character ऐसा है, प्रधान जी
अभिषेक को देते जाते हैं, अभिषेक प्रधान जी से लेते जाते हैं, और उस कैरेक्टर का नाम है लॉकी। तो कुछ मतलब ये रिलेशनशिप थोड़ा अजीब नहीं है कि मतलब कुछ बताएंगे उसके बारे में, ये क्यों है? आई थिंक कोई एक सब्जी थी जो चाहिए थी कि मतलब जो प्रधान जी अपने घर पे कहीं पे उपजाते हैं और वो गांव में बांटते रहते हैं। अब वहां पे लाइक वाई लौकी, लाइक बिकॉज इमेजिन करने पे लगता है कि अगर प्रधान जी हाथ में लौकी लेके घूम रहे हैं तो विजुअली काफी फनी लगता है। अगर शायद वो कुछ और लेके घूमे, अगर गोभी लेके घूमे तो शायद उतना फनी नहीं लगेगा, बट लौकी हाथ में लेके घूमते हुए फनी लगता है। इसने मुझे पहला पिच ये किया था कि मिश्रा जी लौकी इज अ वेरी फनी वेजिटेबल, और मैं सोचने लगा कि फिर अनफनी कौन से होते हैं। तो somehow आई थिंक एक जो मैं भी बता रहा था कि गांव में लेन देन का सिस्टम रहता है, अब उसमें कुछ रखना था। आई थिंक चंदन को फनी लगता है लौकी, तुमने लौकी रख दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट सीजन में क्या फनी लगता है, शायद कुछ और सब्जियां कुछ और फल आए। लेट्स सी।